everyone. Coach 2025 राइट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आप सब ने दिया और आई होप अच्छा ही गया होगा, बट एक क्यूरियोसिटी रहती है पेपर के बाद राइट कि कितने आंसर करेक्ट है और हमने जो किया है वो सारे आंसर करेक्ट है या नहीं. और द थिंग इज़ दैट वी आर डिस्कसिंग क्विक रिव्यू. इट मीन्स दैट which are the methods you can adopt to solve the question quickly. So it will enhancing your power ability to. So let us start with the discussion of the class 6 paper mental ability. So what is the first question? Find the missing term. Yes, correct. You know that all these are prime number. Not necessary. Whenever the sequence will start from the least prime number. So here it is start with the 13, 17, 19, 23. So what is the next prime number? We know that. (13, 17, 19, 23). What is the next prime number after 23? Yes, 29. So what is the number? Correct answer is 29. Next is a family has 6 sons and each son has 1 sister. So we just named that he 6 sons. So A, B, C, D, E, F. These are the 6 sons and each have 1 sister. So this one is the sister. They have only 1 sister. So मेरी एक बहन है, सबकी 6 के 6 भाइयों की एक ही बहन है. सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? सो 6 brothers, 6 sons and 1, they all of them have 1 sister. So total 7 members are there in that family. Identify the odd one out. Obviously, yes, the answer is circle. Because you can see that triangle, square, rectangle, they all are made up of the line segment, while the circle is, yes, it is not a polygon, right? Remaining are the polygon. So circle is the odd one out. So circle is the correct answer. If John is taller than Jack and Jack is taller than Jim, who is the shortest? It's too easy. John is taller than Jack. And Jack is taller than Jim. So among the 3, who is the shortest one? Jim. So what is the correct answer? G. Complete the sequence B, D, F, H, G, L. Okay, the sequence is based on the skipping some letter. So it will start with B, D, F. So B, C, D, E, F. So we just cancel out. They have skipped 1 letter. Skip the next letter. So you can see that H, G, H, J, L. So after H, G, तो G को skip किया. H, I, skipping of I, J, K, L. So same way, L के बाद N, N, तो N, P, R के बाद क्या आएगा? So R के बाद S, तो skipping of S, T, U is skip, V, W and X. So these are the skipped letter. So which one is our option? The option with the TVX. So where is the TVX? First one. Find out from the amongst the 4 alternative as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line. So this one is the dotted line and this one is the question. Here square is given and here rhombus is given. If we fold, if we flip this side to this, मतलब यहाँ से हम लेकर यहाँ आएंगे, right? या तो इसको भी वहाँ लेकर जा सकते हैं. So among this, which option is correct? So as you know that this side, this rhombus side is larger than the square, right? So it is not, the square, the rhombus is not exactly fit into the square. So this option is cancel out.
even though square is not completely placed inside of that rhombus, so this option is also cancelled out. So you may have these two options, right? So among this, which one is the correct one? So you can see that if we flip this, right, so it look like here the square is there and the rhombus. So if we flip it, it just look like so which option is correct? It is not totally blackout, right? So which option is correct? The correct option is first one, right? The first option is correct. Okay. Next one. Same question, same type of questions, where we fold it to the dotted line, right? Transparent sheet and all that. So what is given? This one is the question figure. If we are just be flip out on this side, or this will be on this side, okay? So if we flip out this, so this line is and just be overlapped like this, you can form the mirror image of that line. So this side is empty, and on this side we can find that same figure. We can find it in the option number 4. So D option is the correct one. Again, same kind of paper folding question. So as we have just be flipped to this dotted line, right? When we fold it from the dotted line, then it just look like ये तो triangle overlap हो जाएंगे और ये circle क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा. तो हमारा फिगर कुछ इस तरीके का दिखेगा. हमारा जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट? इस तरीके का. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में. यस. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. देयरफॉर सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके. Choose a figure which would most closely resemble the unfolded form of the figure. Folding and unfolding आप सबने क्राफ्ट किया होगा, राइट? तो उसी के टाइप का क्वेश्चन है कि जब भी हम कट्स देते हैं और ओपन करते हैं, पेपर फोल्ड करने के बाद कट देते हैं और ओपन करते हैं तो कुछ एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है. तो वो कैसा दिखेगा? तो पेपर को पहले हमने डायगनली फोल्ड किया, फिर फर्दर उसको हमने हाफ में डिवाइड किया. इस तरीके से फोल्डिंग बता रखी है, right? This kind of folding is there. Then again flip to right side. Okay, and marking is given over so whenever we unfold the first fold, okay, first fold को हमने unfold किया तो कैसा डायग्राम दिखेगा? तो ऑब्वियसली ये लाइनिंग तो एज इट इज रहेगी, यहाँ पर लाइनिंग आ जाएगी. उसके बाद हमने इसको फर्दर टू फोल्ड किए इस डायरेक्शन में, रिवर्स में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा. हम इस डायग्राम के अंदर ही बना लेते हैं. तो अब फर्स्ट हमने ये लाइन ड्रॉ की, फिर हमने ऐसे. तो कहाँ कहाँ पर वो पार्ट है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अगर हम वापस ओपन करते हैं तो इन दोनों लाइंस पर भी कट्स होंगे क्योंकि वो तो एक कॉमन कट होगा. Is this clear? और उसके बाद हमने फिर से फोल्ड किया, अनफोल्ड किया, तो ये पूरा हमारा पेपर कुछ इस तरीके का दिखेगा. चलिए देखिए, इस तरह का फिगर हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. Which one is the likely one? Yes? Second one? So what is our correct answer? Second.
Okay, option number 2 is the correct answer. भाई अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? फर्स्ट हमने हाफ फोल्ड किया, अगेन फर्दर हाफ फोल्ड किया, तो आप देख सकते हो हमें ऑप्शन फाइंड करना है, तो हम इस क्वेश्चन के अंदर ही मिरर इमेज ड्रॉ कर लेंगे उस फिगर का, ठीक है। अब यहाँ से फिर से कर रहे हैं तो ये सेंटर इस कॉर्नर पर। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन? सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Swap the letters, it's too easy. It's coding, decoding kind of question. So, swap the letters in a pair, garden. So, you can see that here, we have to swap the letter G और A को replace करना है. So, GA, RD and EN, that is given to us. So, after swapping them, we will get the word AG, DR and E. So which option is correct? A option. Identify the number of triangle in the figure, right? So here some patterns are there, you have to observe it. कैसे करेंगे? ठीक है, मैं एक अलग कलर चूज कर लेती हूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। सो फर्स्ट इज, ये तो दिख ही रहा है, फर्स्ट ट्राइंगल, ओके। सो दिस वन इज द फर्स्ट ट्राइंगल। हियर यू कैन सी दैट टू ट्राइंगल। एक तो मान लो मैंने इसको नाम दे दिया PQR, और यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो 2 एंड दिस वन इज 3। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक ट्राइंगल है, सो इट इज अ फोर्थ। This one is also 5, M and O, तो एक और ट्राइंगल, तो मतलब ये हो गया फिफ्थ। फिर उसके बाद ये 6, 7 जो सेपरेटली दिख रहे हैं, उसके बाद ये 8, 9, और भी एक ट्राइंगल बन रहा है, विच वन? भाई ये वर्टेक्स R है, तो R, Q एंड S। सो RQS भी एक अलग ट्राइंगल है, आप देख लीजिए। तो टोटल कितने ट्राइंगल हुए? ये हो गया 8, फिर ये हो गया 9 और ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 10 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, 6, 7, फिर 8, फिर ये 9, हाँ यहाँ पर एक नंबर था ना, ये वाला ट्राइंगल जो हमने 2 बार नंबर दे दिया, तो ये हो गया 10th वाला, ठीक है। तो टोटल कितने ट्राइंगल हुए यहाँ पर? 10। एक बार फिर से कर लेते हैं। So this one is the first, second, ये बड़ा ट्राइंगल थर्ड, 4, 5th, 6, 7, 8, ये 9th, और ये सबसे बड़ा दैट इज 10। So total how many triangles are there? 10 triangles. मिस्टर दीपक मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो डायरेक्शन वाले डायग्राम साथ साथ ही बनाते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मिस्टर दीपक ने ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड देन टर्न्स टू राइट। सो अगर डाउन जा रहे हैं तो राइट डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट के ईस्ट, ऑब्वियसली कौन सा होगा? वेस्ट। तो ये उन्होंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप किया, एंड देन टर्न्स टू द राइट। तो उनका राइट कहाँ पर होगा? राइट है ना, कौन सी डायरेक्शन में होगा? पहले साउथ जा रहे थे, देन टर्न्स टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, this one is your starting point. Mr. Deepak is moving towards the south direction. How many kilometer? 5 kilometer.
and turns to the right. So right ये होगा, left ये होगा, तो right direction में उन्होंने टर्न लिया. After walking 3 किलोमीटर, भाई यहाँ पर है तो उनका राइट और लेफ्ट क्या होगा? अगर इस वेस्ट साइड को डायरेक्ट कर रहे हैं तो उनका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा. सो आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट, तो यहाँ से वो लेफ्ट ले रहे हैं, तो कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? अगेन साउथ. एंड वॉक्स 5 किलोमीटर. What direction is he facing right now? So which direction he is facing? So already this downward direction हमें बता रही है कौन सी direction? South one. So which option is correct? South. A clock is so placed that at 2 p.m. Right? चलो clock है, एक बना देते हैं clock. PM, so we know that this one is at 2, hour end at the 2 and the minute hand is showing at 12. The minute hand points toward the northwest direction. This direction is what? Northwest. In which direction does the hour end point at 6 PM? तो hour end का direction बताना है. So 6 तो यहाँ पर होगा. So northwest का opposite direction क्या होगा? Which one is? Southeast? है ना, एक बार चेक कर लो आप. नॉर्थ वेस्ट है तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो यहाँ वेस्ट होगा, यहाँ पर नॉर्थ होगा. देन आफ्टर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, यहाँ पर होगा आपका साउथ, अपोजिट. सो विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? साउथ ईस्ट डायरेक्शन. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? D1. Select the figure from amongst the answer figure which will continue the same series and established by the 5 problem figures. So you have to find that which is the next figure in among the 1 to 5 option, right? So you can see that the first is not a polygon, that is a circle. Inside the circle the least sided polygon, that is triangle. Then only triangle. After that triangle along with the square. So triangle के अंदर square है. Triangle के कितने side है? 3 sides और square के 4 sides. फिर उसके बाद next polygon only quadrilateral. तो obviously आप repetition देख रहे हो कि जो भी polygon inside होता है वो उसके बाहर वाले polygon से number of sides ज़्यादा होते हैं, right? So after square, तो square कहाँ आ जाएगा next figure में? Square has how many sides? 4 sides. तो उसके अंदर जो शेप बनेगा उसके क्या होंगे? 5 side, at least 5 side. So you can search that. Which option is correct? You can go with the 4th option. Pentagon सीधा भी हो सकता है, upside down भी हो सकता है. So 4th option is the correct one. So here D option is correct. Okay? तो ये तो हमारे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए. मैथ्स के क्वेश्चन भी जानने हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का. मैथ्स के सारे सोल्यूशन देख लेते हैं कि आपके आंसर आई होप करेक्ट ही आएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक 2 digit 7 and 9, the smallest 4 digit number. Okay, we have to form smallest 4 digit number, right? So we have to form the 4 digit number using the digit equal number of time. So we have to form the number using digit 7 and 9 only, right? So as you know that equal number of time. So how many times we have to use 7? 2 times 7 and 2 times 9, right? And we have to form a smallest 4 digit number. So obviously smallest digit added the highest place, right? So here the number is what? 7799. Which option is correct? According to this, B option is correct. So B is our correct answer. Okay.
All of you have learned about this property. 98 into 5 is equal to 490. Which property is used? Can you tell me? Okay. So 98 into 5 is equal to 490. Next is given 98 into 15. Can I write this as 98 into 5 into 3? I can split 15 as a 5 into 3. What is the answer of 98 into 5? We know that it is 490. So answer is equal to 490 into 3. Right? So same way we can go with the pattern that's 98 into 25, and you know that we can split it as 98 into 5 into 5. So that is equal to 98 into 5 is what? 490 into 5. तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है? The question is given to us as what is the value of 98 into 35? Right? Therefore, we can write it as 98 into 5 into 7. And we know that what is 98 into 5? 490 into 7 is your answer. So, which option is correct? तो ये सारे क्वेश्चन हमने कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व किए? It's just grouping property, that is the associative property, right? Number of lines that can be drawn from two distinct points on a plane. तो हमारे पास एक प्लेन है जिसके अंदर मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिए हैं. वैसे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, बट वी हैव जस्ट चूजन द 2 पॉइंट, दैट इज P and Q. So how many lines can we draw which connects the P and Q? So only one line, only one distinct line we can draw which connects this 2 point, right? So when we connect any 2 point, only one line can be drawn which connects both the point. Next is, which one is the correct one? Okay, we just go with the option. First option is 999 plus 1. What is 999 plus 1? It is 1000. 1000 and 10 into 1000 is 10,000. So this statement is incorrect because left hand side is 1000 and the right hand side is 10,000. तो ये तो option गलत हो गया. Greatest 2-digit number. Which one is the greatest 2-digit number? 99 plus 1. So when we add 1 into 99, it becomes 100. We will get a smallest 3-digit number. What is the smallest 3-digit number? Yeah, it is also 100. Yes, so left hand side और right hand side दोनों बराबर हैं. Therefore, B option is the correct one. C और D obviously incorrect ही होंगे. So no need to solve them. The common end point of an angle is called. ये तो simple सा है. As we know that angle जब भी form होता है 2 arms होते हैं. Suppose this one is the ray OA and this one is the OB. So when then OA and OB are originated from the same point, that is O, and O is known as what? Vertex or the point of origin of an angle. So here which option is given to us? Vertex. So vertex is the correct answer. Next is given, find the cost of fencing a square park. Okay, what is the shape of the park? Square. So in square all sides are equal, that we know that. Fencing a square park means we have to find perimeter. Suppose the side of the square is A is given to you. So perimeter is equal to perimeter of square is equal to 4 times side. So 4A. Find the cost of fencing a square park of side 300 meter. तो side यहाँ पर given ही है. तो A is equal to what? 300 meter. So we can find that 4 into 300, that is how much? 1200 meter. So what is the perimeter of the square? 1200 meter. तो उतने ही एरिया में हमें क्या करनी है? फेंसिंग करनी है. It is at the rate of ₹20 per meter. तो कॉस्ट फाइंड करनी है. तो 1 मीटर का कॉस्ट है 20 रुपीज़. सो 1200 मीटर का कॉस्ट कितना होगा बेटा? 1200 into 20. So that is how much? Rupees
24,000. So which option is correct? The option number A. The numbers which we use for counting are known as we know that we just start counting from 1, 2, 3, 4 and we are keep going on, right? So all these numbers are natural numbers. So which option is correct? Natural numbers. Property used in a 57 plus 0 is equal to 57. As we know that 0 is added and 0 is known as what? Identity element for addition. So which property we have used? Additive identity. 0 is additive identity. Total 5-digit numbers are, okay. So you are going to count that. Which one is the least 5-digit number? It is 10,000, right? And the greatest is 99,999. So the least 5-digit number $10,000 and greatest 5-digit number is 99,999. Okay? But still we know that 10,000 is a 5-digit number, so we have to consider. So from the greatest 5-digit number, we just subtract greatest 4-digit number. क्योंकि उसके बाद तो हमारे 5-digit number start हो जाते हैं. What is the greatest 4-digit number? भाई इन दोनों का क्या कर लेंगे हम? Difference निकाल देंगे. What is the difference of this two number? So we know that it is 90,000. So how many 5-digit numbers are there? So we can start from the 10,000 to 99,999. So these are 90,000 5-digit numbers are there. So what is your answer? 90,000. C option is the correct one. A man purchased 26 buttons on a one day and at 14 on another day. Each button cost rupees 12, the total cost of this button. So this kind of question we can solve with the distributive property for a whole number. So as we know that 26 buttons, what is the cost of 26 button? 26 into 12 because each button cost is rupees 12. Next, on the next day he has purchased 14 buttons and he has paid the money 14 into 12. So on 2 days, he has added 26 into 12 plus 14 into 12 rupees. So here we can use the distributive law as 12 is the common factor. So 12 into 26 plus 14. So 12 into 26 plus 14 is 40. So what is your answer? 480 rupees. So how much he has paid for the button? 480 rupees. The difference between a line and a line segment is. तो ये तो basic theoretical question है कि difference between the line and the line segment. So line we can extend indefinitely because we know that line का symbol ये होता है. It means that it can further extend. But whenever we draw a line segment, so it has a particular length. Suppose मान लो A unit, कोई भी यूनिट का दिया है 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड द लाइन सेगमेंट? सो वी जस्ट गो विद द आंसर. अ लाइन हैज अ डिफाइनाइट लेंथ? नो, लाइन का डिफाइनाइट लेंथ नहीं होता है बिकॉज इट कैन बी एक्सटेंड फर्दर इन बोथ डायरेक्शन. अ लाइन हैज अ इनडिफाइनाइट लेंथ? यस, लाइन का लेंथ इनडिफाइनाइट होता है एंड अ लाइन सेगमेंट हैज अ डिफाइनाइट लेंथ. यस, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, find the perimeter of the given figure. Perimeter means what? Sum of all the sides of that polygon. So you can go with the figure. हाँ, बट इसको क्विकली कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिए आप. यहाँ पर आप साइड देख रहे हो 2.5, 2.5. बोथ ऑफ दिस आर इक्वल साइड. 0.5, 0.5, 4 and 4. So we just write that 2.5 is added 2 times, so into 2. Plus 0.5 is added 2 times, so into 2. 4 is added 2 times, so 4 into 2.
and 1 is same. Here we are going to find what? Perimeter. So 2.5 into 2 is what? 5. 0.5 into 2 is 1. So it is 6 plus 8, 14 plus 1 is 15. So what is your answer? 15 centimeter is the perimeter of this figure. So A option is the correct one. What will happen to the area of the rectangle if its length is double and the breadth is same? चलो मान लेते हैं, पहले हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसका लेंथ L है और ब्रेथ है B. So what is its area? So as we know that area is equal to L into B. And in the next rectangle, the length is double, so we can write 2L. And what is its breadth? Only B. Breadth has remained same. So what is the area of this rectangle? So 2L into B. So it is 2 times L into B. So which is equal to 2 times ओरिजिनल रेक्टेंगल. मतलब क्या हो गया? डबल हो गया. पहले वाले रेक्टेंगल से इसका एरिया क्या हो गया? डबल हो गया. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? डबल. इफ टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, एज यू नो दैट लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? सो एक सपोज स्ट्रेट लाइन है, राइट, और यहाँ से एक रे जा रहा है. सो दिस टू एंगल AOB and AOC are known as linear pair of angle. Then their sum is what? So as we know that they lies on the same line, so their sum is what? 180 degree. So 180 degree is the correct answer. A number of boys in a class are 27 and the girls are 19. Write the total strength of the class. But here the answers are given in Roman numeral. So first of all, we are adding just Hindu Arabic numbers, that is 27 plus 19. What is 27 plus 19? 46. How do we write 46 into Roman numeral? So 46 as 40 plus 6. How would we write 40? So 40 is 50 minus 10 and 6 so as it is, right? How do we write 50 minus 10? So we have to write x just before the L. L is used for a 50 but 40 लिखना है तो yes, the smaller digit, the smaller symbol is placed left of this. And 6 के लिए क्या symbol है बेटा? Sorry. So which option is correct? Yes, C option is the correct one. XLVI. So 46. What is the simplest form of the fraction? Okay. So you can use the cutting method or you can find the HCF. दोनों देख लेते हैं. 120 upon 525. So as you know that both are divisible by 5. So as you cut them, so you will get divide by 5. So it is and when this one is divided by 505. As you know that 24 and 105 again divisible by 3. So now we just cut by 3, divide by 3. So 24 divided by 3 is 8 and 105 divided by 3 is 35. So which option is correct? 8 upon 35. Or you can find HCF. Okay, you can find HCF of 120 and 525. So 120 और 525 का HCF क्या हो जाएगा? 15, right? Then you can divide 120 by 15 and 525 by 15. So which is the correct one? 8 upon 35. You will get the same answer either by cutting or by finding the HCF. Predecessor of the smallest 4-digit number formed by the given digit. तो digits क्या क्या given है? 3, 7, 0 and 5. We have to form smallest 4-digit number. First of all, form the smallest 4-digit number. So smallest 4-digit number is, can we place 0 at the highest place? No, otherwise the number become of 3 digits.
So least digit after 0, that is 3. Then 0, 5 and 7. Right? So 3057 is the smallest 4-digit number formed using the given digit. But we have find what is the predecessor of that number. Predecessor matlab what? Yes, the number 1 less than the given number. So it is what? 3056. So which option is correct? B option. Which of the following number has 9 as a factor? Okay, 9 as a factor, it means that we have to find among the given number which number is exactly divisible by 9. So, as we know that, what is the divisibility rule for 9? Sum of the digit. If sum of the digits are exactly divisible by 9, then the number 2. So, here the first number is given 10898. So, we just write 1 plus 0 plus 8 plus 9 plus 8. Right? So, you can go with the calculation. So, it is equal to 28. Where the 28 is not divisible by 3. 28 divided by 3, we will get what? Not whole number. ठीक है, ऐसे कर सकते हो, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग. हम क्या करते हैं वो देखो, क्विकली सॉल्व करना है. तो एज वी नो दैट 8 प्लस 1 इज 9, तो 8 और 1 को कैंसिल कर दिया, राइट? क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, 9 9 से भी डिवाइड हो रहा है. 9 is also divisible. Now we just left with 0 and 8. So what is the sum of 0 and 8? 8, and 8 never divisible by 9. तो ये नंबर आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, चलो सेम वे इस ऑप्शन को देख लेते हैं. So here we can cancel out 9 and 9. Here one more 9 is there, and 2 plus 1 is 3. Is 3 is divisible by 9? No. तो ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड नहीं ही होगा. Is this clear? चलिए देखते हैं और एक ऑप्शन देखते हैं. यहाँ पर है तो क्या करेंगे, 9 की पैर बनाएंगे. 6 plus 3 is 9. 5 plus 4 is 9. So what is left? 1 plus 2, and 1 plus 2 is 3, which is not exactly divisible by 9. तो ये नंबर भी आपका नहीं है. चेक कर लो लास्ट नंबर है क्या नहीं. So here you want to add, you can. Otherwise we will go with that कि भाई 8 is repeated 4 times. So 8 4s is 32. 32 plus 4 is what? 36. Is 36 is exactly divisible by 9? Yes, therefore this number is exactly divisible by 9 too. So which option is correct? B1. Write in the product form 2p square into q cube. Means that we have to write it into the factor form. So 2p square into q cube, it means that 2p square means how many times p is there? 2 times. And how many times q is there? 3 times. Right? So you can find that which option is matching with our answer. Yes, obviously D1. Not necessary they are arranged in the same order. Okay? थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन. Difference between the place values of the 3 in the given number, right? तो अगर हम given number की बात करें, so what is the difference between the place value of 3? So we know that 3 1 1 6 3 6 5. The number is given to us. So what is the place value of this number? 300. And this one is after 3, how many zeros? 1 2 3 4 5 6. So we have to find the difference. तो इसमें से हम किसको माइनस करेंगे? 300 को. 0 0, you know that you can go with the this carry and all that. So 2 9 9 9 and 10 minus 3 is 7. So 2 999 700 मतलब 29,99,700. So which option is correct? A1. Okay. A piece of wire 7 by 8 meter long broke into 2 pieces. One piece was 1 by 4 meter long. How long is the other piece? So what do we have to do? भाई 7 by 8 meter का जो total wire था, which is made up of 2 pieces. The first one length is of 1 by 4 meter,
So we have to find what is the length of the another one. So we could find that another one, suppose it is x meter long. Therefore, x is equal to 7 upon 8 minus 1 upon 4. So what is 7 by 8 minus 1 upon 4? So we have to multiply, we have to convert into equal one. So it is 2 by 2. So now it is 7 upon 8 minus 2 upon 8. So which is equal to what? 5 by 8. So the length of the another piece is of 5 by 8 meter long. So D option is the correct one. Reduce the 12.5 in the form of P by Q. 12.5, which is decimal form, is given to you. You have to find what is its rational form. So 12.5. First of all, convert into decimal fraction. So it would be 125 upon 10. You know that both this number are divisible by 5. So when we divided both the number by 5, so 125 by 5 is 25 and 10 by 5 is 2. So which option is the correct one? B. Subtract two decimal number, right? So 23.75 minus 17.35. So it's a very simple. So here we can write 1 and 10. So 10 plus 3 ho jayega 13. 13 minus 7 is what? 6. Right? You can write 13 directly. 13 minus 7 is 6 and 0. So what is your answer? 6.40 rupees. Smallest among the following. So as you know that all this fraction have the same numerator. Right? So the fraction with the highest denominator has a least value. So out of this 11, 12, 13 and 14, which one is the 14 is the greatest one. तो 7 को हम 14 equal parts में divide कर रहे हैं. 7 by 13 means what? 7 is divided into 13 equal parts. तो जितने ज़्यादा parts में divide होगा उतना value क्या होगा? कम होगा. So which one is this least one among this? 7 by 14. Clear? The correct sequence of the numbers in ascending order. So here about the integers. So we know that the greatest negative integer is -1. 0 is the integer which is non-negative, non-positive, and 1 is the smallest positive integer. So according to that, we can see that which one is arranged correctly? C option. 0 is less than -1, incorrect one. 1 is less than -1. भाई जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े ही होते हैं, तो ये भी गलत है. डी ऑप्शन है. -2 इज लेस देन -3. नहीं, अगर हम नंबर लाइन देखें so 0, -1, -2, -3. So as we are moving on a left side, the integers value is decreasing. So -2 is greater than -3, right? So this option is also incorrect. So which one is correct? C1. Fill in the box. So first of all, we have to solve left and right hand side. What is given? -10 minus -18. So if we solve, it is -10 plus 18. What is -10 plus 18? 8. Right? Because we know that plus minus is minus. We have to subtract. Next is -10 minus plus 18. So it is -10 minus 18. And this answer is of -28. So you can see that all negative integers are less than all positive integer. Means that 8 is greater than -28. So which symbol is the correct one? Should be placed into the box. That is left hand side is greater than right hand side. Find the value of -10 minus -10. Again same type of concept. -8 minus 10. So -8 plus 10. So what is -8 plus 10? It is 2 is your correct answer. If the area of the square is 169, then its perimeter is. So first of all, we are going to find what are the side length of the square. Area is given to us as a 169. Suppose the sides lengths are of A unit.
Therefore, we can write area is equal to a square, and area is 169, which is equal to a square. It is 13 square. Side of the square is equal to what? 13 meter. But what we have to find? Perimeter. Therefore, perimeter of square is equal to 4 into side. So it is 4 into 13. So it is 52 meter. So which option is correct? B option. In the given figure, interior points are. Interior points means what? Yes. Points which lie inside of this angle. These points are known as exterior. This part is exterior part. This part is interior part. Right? And this one is on the part. Okay? On the angle. So, which are the points lies in the interior part of an angle? So, these are A, P and T. So, which option is correct? C option. There are two numbers. One of the number is 3 times the other number. Their sum is 40. Find the numbers. So you can use the method that the first number, suppose first number that is equal to x, and the second number is 3 times of another number, so that is equal to 3x, right? So we can go with that. What is the sum? Sum of two numbers is equal to 20. Therefore, x plus 3x is equal to 20. So 4x is equal to 20. Therefore, x is equal to what? 5. So the first number is 5. Then the second number is 3 into 5, that is 15. So which option is correct? 5 and 15. Okay? तो आप सबने, आई होप आप सबने अच्छा ही किया है और आपने आपके आंसर भी सही आए होंगे. ओके, ऑल द बेस्ट एंड वेट फॉर योर रिजल्ट. बाय. ओके, सो हेलो एवरीवन. आई होप आप सब लोग की खोज एग्जाम जो थी वो बहुत अच्छी गई होगी. ओके, बिकॉज खोज एग्जाम जो है वो आपको सबसे पहले तो आपका जो रैंकिंग है वो बताता है कि ऑल ओवर वडोदरा एज वेल एज गुजरात में, क्योंकि खोज एग्जाम जो है वो पूरा गुजरात लेवल पे होता है, तो उसमें आपका रैंक क्या चल रहा है, राइट. दूसरी चीज बेटा, स्कॉलरशिप मिलती है खोज एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे, जिसके रिगार्डिंग हम लोग बताते रहेंगे आपको. अभी हम लोग जो मेन डिस्कस करने वाला दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्लास 6 इन फिजिक्स, राइट. फिजिक्स के अंदर जो क्लास 6 का पेपर है उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग टू डायग्राम एंड आंसर इन विच केस द बल्ब विल ग्लो. बल्ब कब ग्लो करेगा? सो बेटा हम सबको पता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेनेवर द सर्किट इज अ क्लोज्ड सर्किट, अगर क्लोज सर्किट है तो ही करंट फ्लो होगा. इफ इट इज ओपन एट एनीवेयर देन करंट विल नॉट फ्लो. सो अगर तुम देख रहे हो तो स्विच यहां पे मेंशन किया हुआ है और यहां की स्विच जो है वो ओपन है, whereas इधर जो स्विच है इट्स अ क्लोज स्विच. सो अगर क्लोज स्विच है तो करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो करेगा ही करेगा, राइट. सो फर्स्ट का आंसर जो आएगा दैट सर्किट नंबर 1 में ग्लो होगा. ओनली सर्किट 1 में ग्लो होगा, सर्किट 2 में ग्लो नहीं होगा, राइट. चलो बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The image formed by a pinhole camera on the screen is. तो बेटा पिनहोल कैमरा के अंदर क्या होता है, एक बॉक्स है जिसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, होल से लाइट रे ट्रैवल करती है और ये हर एक कैमरा का एक बेसिक वर्जन है दैट इज नोन एज पिनहोल कैमरा. इधर होल की जगह पे हम लेंस लगा देंगे तो हमारा जो अभी का जो कैमरा हम यूज करते हैं वो बन जाता है, राइट. सो डिस्कस करते हैं पिनहोल कैमरा में क्या होता है. सो ट्री है और उसकी लाइट रेज हम लोगों ने ड्रॉ करके रखी है और यहाँ स्क्रीन पे एक इमेज बन रही है. ऑब्वियस बात है दिस इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है, दिख रहा है वो तो ठीक है. और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसकी जो साइज होगी वो डिमिनिश्ड है, छोटी साइज की है, स्मॉल साइज की है, राइट.
So answer will be the image is inverted and diminished. ऑप्शन नंबर डी. बहुत इजी क्वेश्चन था, डायग्राम देख के हमें आंसर पता चल जाएगा. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है वो मैग्नेटिज्म पे है. A nail is magnetized as shown in the figure. Which polarity will develop at A and B? एक अगर नेल को हम मैग्नेट से रब करते हैं और एक ही डायरेक्शन में हमारा स्ट्रोक रहेगा तो धीरे धीरे नेल मैग्नेटाइज्ड हो जाती है. अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस पोल से हम स्टार्ट करें, मतलब नॉर्थ पोल को हमने ए से कनेक्ट किया और फिर इस तरफ हम लोग उसको स्लाइड कर रहे हैं, तो जो पोल से हमने टच किया है पहला ए पॉइंट को मैंने नॉर्थ पोल से टच किया है, तो ए जो है वो नॉर्थ बन जाएगा और जो लास्ट में हो रहा है दैट इज बी पॉइंट, वो हमारा साउथ पोल बन जाएगा. अगर मैं मैग्नेट को उल्टा रखता, इधर साउथ रख के रब करता, तो ए साउथ बनता और बी नॉर्थ बनता. बट इधर हमने नॉर्थ रख के रब किया है तो ए विल बी नॉर्थ, बी विल बी साउथ. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, विल मूव अहेड. Speed of a car is 30 मीटर पर सेकेंड. फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. सो बेटा ये यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों को किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में रिलेशन निकालना है. तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन कर ही लेते हैं. 1 किलोमीटर पर आवर की अगर हम बात करें और उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो बेटा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 आता है. 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर. सो जो ऊपर हमने किलोमीटर लिखा है उसको 1000 मीटर लिख लिया. डिवीजन में लिखा है आवर. आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होती है एंड इन ईच 60 मिनट्स, इन ईच मिनट्स देयर इज 60 सेकंड्स. सो टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स विल बी 60 इंटू 60. सो 1 आवर में टोटल इतने सेकंड्स हो गए. अब कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से हम करेंगे तो ये आएगा 3, 10 को 2 से कट करोगे आंसर आएगा 5. राइट. सो 1 किलोमीटर पर आवर can be written as 5 by 3 into 6 हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड. सो 1 किलोमीटर पर आवर है 5 by 18 मीटर पर सेकेंड. बट इधर हमको उल्टा पूछा है कि 30 मीटर पर सेकेंड इज हाउ मच किलोमीटर पर आवर. सो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें, मतलब 18 और 5 को उस तरफ ले जाओ. सो आई कैन राइट 18 by 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड. मतलब 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो 18 by 5 किलोमीटर पर आवर है. सो हमें चाहिए कि 30 मीटर पर सेकेंड कितना होता है, तो दोनों तरफ मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. सो 30 इंटू 18 by 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 30 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड. बेसिकली मैंने दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लीकेशन किया. राइट. सो फ्रॉम दिस अगर ये कट करोगे तो आएगा 108 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड. So 30 meter per second is nothing but 108 kilometer per hour, which means option C is correct solution for this question. We'll move ahead. Next question पे चलते हैं. Which book will exert more pressure? So beta we know that pressure is nothing but force divided by area. Okay? Pressure का simple formula होता है force divided by area. अगर area ज्यादा है तो pressure कम हो जाएगा और एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ जाएगा. सो अब लोग देख सकते हैं बेटा जो बुक 2 है उसका एरिया छोटा है एज कंपेयर टू बुक 1. सो एरिया छोटा है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. राइट. सो बुक 2 विल एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द टेबल. ओके, सो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. विल मूव. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, पोल स्टार्स अपीयर टू बी स्टेशनरी इन ऑल सीजन बिकॉज. सो बेटा हम सबको पता है जो पोल स्टार है ओके वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज करता नहीं दिखता है और उसका सिंपल रीजन ये है कि जो हमारा अर्थ का रोटेशन है उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसी एक्सिस पे कहीं दूर एक पोल स्टार रखा है. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ पे पोल स्टार होने की वजह से उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी. बाकी सब स्टार्स की पोजीशन सीजन्स के टाइम चेंज होती है बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द sun. Okay, but pole star happens to lie above the axis of north pole of the earth. So option C is correct. On the axis pole star lie करता है, that's why it doesn't change its position as seen from earth. Okay, I hope ये आपको समझ में आया होगा. हम लोग next question पे चलते हैं. Go ahead to the next question. What causes the formation of shadow?
शैडो किससे बनते हैं? सो बेटा सिंपल कहानी है शैडो के लिए कि जो लाइट रेज आ रही है वो जब ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो ओपेक ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं और बाकी सारी लाइट रे जो टकरा नहीं रही है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर जाती है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट शैडो फॉर्म होता है. सो द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ शैडो इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती और ऑटोमेटिक बाइंड होती तो शैडो कभी बनता ही नहीं. ओके, बट बिकॉज इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन दैट्स व्हाई शैडो इज फॉर्मिंग. ओके, सो आंसर ए विल बी करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 7. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8. बहुत सिंपल क्वेश्चन है लाइट पे. द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर. द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री. सो वी नो दैट दिस इज इंसिडेंट रे और ये जो है वो है रिफ्लेक्टेड रे. सो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 80 डिग्री का एंगल बना है. हमसे पूछा है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस. सो नॉर्मल ऑफ द सरफेस अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा. दिस इज द नॉर्मल ऑन द सरफेस. ये एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वी नो फ्रॉम फिगर दैट I प्लस आर विल बी इक्वल्स टू 80 डिग्री. ओके, बट बेटा हमें यह भी पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल I विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल R. मतलब I और R जो इधर है वो सेम है. सो I कैन राइट I प्लस I विच इज 2I इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. So I can be written as 40 degree. So angle of incidence will be 40 degree. I hope ये आपको समझ में आ रहा है. अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करके आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, we'll move ahead. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. When the strength of current flowing through the coil is increased. Okay, यहां पे बेटा क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म पे और बेसिकली मैग्नेटिज्म क्यों हो रहा है उस पर डिस्कशन है. सो बेटा हम सबको पता है कि मैग्नेटिज्म के पीछे रीजन जो होता है वो होता है करंट. अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होता है. ओके, सो एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो कब इंक्रीज होगा, मैग्नेटिज्म कब इंक्रीज होगा? सो स्ट्रेंथ ऑफ करंट अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है. विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Distance is always very simple question. We know that we have two terms, distance and displacement. Distance is the length of the path on which object is traveling, whereas displacement is the shortest path between initial and final position of an object. Right? So by the definition से इसका आंसर आ जाएगा that distance is always length of the path covered by an object between any 2 points. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है. आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे खोज में. ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू IIT आश्रम. मैं हूं सौम्या और आज हम डिस्कस करने वाले हैं खोज क्लास 6 के आंसर्स. वैसे आप तो जानते ही हैं खोज एग्ज़ाम है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को काफ़ी एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स के अवार्ड्स मिल सकते हैं. तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं जो हमारा पेपर हुआ है उसमें सेक्शन 3 यानी जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है उसमें केमिस्ट्री के कौन से सही आंसर्स थे. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो हियर वी गो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम. अब देखिए सोडियम वर्ड देख के तो हमें लग रहा है कि SO शुड बी द आंसर, बट नो, द करेक्ट आंसर इज Na. ये कैसे आया? साइंस में सोडियम का जो हमने नाम रखा है, ठीक है, एज पर दी IUPAC, दैट इज नेट्रियम. ठीक है, क्या नाम है सोडियम का? द साइंटिफिक नेम इज नेट्रियम. तो जिस तरीके से IUPAC की गाइडलाइंस हम लेते हैं कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी कैपिटल, लेकिन अगर किसी दूसरे एलिमेंट का ऑलरेडी वही नाम रखा गया है सिंबल, ठीक है, वही शॉर्ट फॉर्म है, सो वी हैव टू टेक द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स ऑल्सो. नाउ इफ़ वी ओनली टेक कैपिटल N, दैट गोज फॉर नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया. मैंने आपको बताया था SO भी गलत है. अच्छा, ये कैपिटल S कौन है? दिस इज सल्फर, तो ये भी गलत ऑप्शन है. ठीक है, तो IUPAC के गाइडलाइंस के हिसाब से नेट्रियम में से हम कैपिटल N एंड स्मॉल a लेंगे. दिस इज गोइंग टू बी Na एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर. चलिए लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
So which of the following is an example of homogeneous mixture? होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स जिसमें जो कि कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी इक्वली या लेट्स से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ठीक है, मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल यहाँ है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ, तो पूरे बल्क में आपको प्रॉपर्ली दो मॉलिक्यूल ठीक से सेट मिलेंगे. राइट, सो दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क. अब देखिए यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में पहला ऑप्शन दिया है सॉल्ट सोल्यूशन. यस, सॉल्ट सोल्यूशन होमोजेनस होता है. आप चाहे सॉल्ट को पानी में मिक्स करें. नाउ इफ यू टेक द अपर पोर्शन, द बॉटम पोर्शन, द मिडिल पोर्शन, द साइड पोर्शन, दे आर गोइंग टू बी इक्वली सॉल्टी. राइट, तो यस सॉल्ट सोल्यूशन तो है. बट व्हाट अबाउट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट. ठीक है, उसे जो पानी में डालते हैं वो ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है. एंड लेट मी टेल यू दिस इज ऑल्सो होमोजेनस. अच्छा, थर्ड कौन है? पोटेशियम परमैंगनेट. इसका बड़ा प्यारा सा पर्पल पिंक कलर आता है. So wow, A, B and C, all 3 are correct. So that clearly indicates option D, which is all of the above options is the correct answer. ठीक है, ये तीनों ही solutions जो हैं वो homogeneous mixtures के examples हैं. Okay, the next, dash causes the particles to move faster. अब देखिए, अगर पार्टिकल को फास्ट मूव करना है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए. अब आप मूविंग एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ाते हैं? यस, ये क्वेश्चन उसका है. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है हीटिंग से. राइट, if we are providing heat energy, we are providing more energy, right? And hence the kinetic energy is increasing. जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा दूर भाग पाएगा, उससे ज्यादा एनर्जी मिल रही है. अच्छा, कूलिंग ठीक उल्टा करता. राइट, कूलिंग तो उसको स्लो डाउन कर देता. अच्छा, अगर पास आ रहे होते पार्टिकल्स तो क्या होता? कॉन्ट्रैक्शन. एंड व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन? व्हेन अ गैस और अ लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड स्टेट. तो वो भी यूजुअली कूलिंग से ही होता है. तो द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट हियर इज थ्रू हीटिंग. ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ. Which of the following is the strongest fiber? अब देखिए, इन जनरल सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. राइट, सो लेट्स सी आवर ऑप्शन. कॉटन, रेयॉन, वुल एंड नायलॉन. कॉटन ये हमें पता है नेचुरल है. ठीक है, रेयॉन सेमी सिंथेटिक में आता है. दिस इज हाफ नेचुरल हाफ केमिकल. ओके, वुल अगेन इज अ नेचुरल फाइबर. नायलॉन is our correct answer here. वैसे क्या आपको पता है नायलॉन की रोप्स एक्चुअली स्टील जितनी स्ट्रांग होती हैं. एंड फॉर दिस पर्पस नायलॉन रोप्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर माउंटेनियरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग. So out of the 4 options given to us, nylon is the strongest fiber. Okay, the fifth question comes here. Which of the following has a dull surface? अब dull surface यानी क्या? उस पे एक नेचुरल शाइन नहीं है, और अगर है भी तो बहुत फीकी फीकी सी है. ओके, इट इज नॉट वेरी ब्राइट, इट इज नॉट वेरी शाइनी. So in general we know that the synthetic fibers have good shine over it. Okay. ओके, नायलॉन में तो काफी अच्छा लस्टर होता है. आपने देखा है वो जो तारे बनती हैं, बेसिकली जो रोप्स बनती हैं, सॉरी तारे नहीं, रोप्स बनती हैं जिसपे हम कपड़े सुखाते हैं, वो नायलॉन की होती हैं. नायलॉन के बैग्स भी आते हैं जिसमें यूजुअली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पैक होके आते हैं. सो दे आर प्रिटी शाइनी, तो उसमें तो अच्छा शाइन है. वुल में भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा शाइन तो होता है. नेक्स्ट, पॉलिएस्टर, दिस अगेन इज वेरी शाइनी. बट देन व्हाट अबाउट कॉटन? ये नॉन लस्ट्रस है. ठीक है, सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन टू अस, कॉटन इज द वन विच इज गोइंग टू हैव अ डल सरफेस. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नीडल एंड नाइफ बिलोंग टू द सेम ग्रुप. ओके, अब देखिए नीडल एंड नाइफ में ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? मतलब क्या ऐसी सिमिलैरिटी है जिसके बेसिस पे हम उसको सॉर्ट करके एक ही ग्रुप में लगाएंगे? चलिए, लेट्स सी द ऑप्शंस. They both are transparent? No. ये तो गलत है. Okay, they are hard and magnetic? Yes, this option is absolutely right. देखिए, needle and knife दोनों ऐसे मटेरियल के बने होंगे जो बहुत जल्दी टूटे ना. मतलब they are going to be hard. It is very difficult to mold them, break them, scratch them. Okay, and if they are made up of iron, or let's say if they are made up of steel also, then they are going to be magnetic in nature. ठीक है, आप उसको मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं. Okay, C and D, they will float on water? No, they have more density than water.
ठीक है, तो वो तो सिंक करेंगे, दे विल नॉट फ्लोट ऑन वाटर. एंड डी वाज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. Usually the materials which are used for making knife and needles are good conductors of heat, not poor conductors. ठीक है, so option B was the correct answer. Okay, next, which of the following is lustrous? मतलब ये shine वापस आ गया, ठीक है. Has fixed volume but no fixed shape. Fixed volume and no fixed shape क्या होता है? लिक्विड होता है. मतलब आपको अब ऑप्शंस में से ऐसा लिक्विड देखना है जिसके पास शाइन है. ओके, सो आयरन लिक्विड नहीं होता, शाइनी होता है, अग्रीड, बट देन नाउ वी कैन नॉट टेक दिस एज एन आंसर. मर्करी, एब्सोल्युटली यस, दिस इज द करेक्ट वन, है ना. मर्करी इज अ मेटल, इट हैज अ शाइनी सरफेस एंड इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. गोल्ड अगेन क्यों गलत हो रहा था बेटा, वो सॉलिड है इसीलिए, राइट. एंड आयोडीन, दो आयोडीन इज लस्ट्रस बट अगेन इट इज अ सॉलिड, ठीक है. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन बी व्हिच इज मर्करी. अच्छा, नेक्स्ट, अ कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर लोडिंग. लोडिंग क्या है? देखिए, जब सेडिमेंटेशन हो रहा है, ओके, लेट अस से वी हैव पुट समथिंग इन वाटर, इट इज नॉट मिक्सिंग इन वाटर, इट इज रिमेनिंग सस्पेंडेड, बट उसे पूरी तरह नीचे बैठने में काफी टाइम लग रहा है. दैट मीन्स द सेडिमेंटेशन इज टेकिंग प्रिटी लॉन्ग टाइम. सो टू फास्टन अप दिस प्रोसेस हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं जिन्हें हम कोएगुलेंट्स कहते हैं. ओके, वो क्या करेंगे, पानी में जाके थोड़ा जेली जैसा सब्सटेंस बना देंगे, और या तो क्या करेंगे, वो इधर उधर केमिकली चार्ज अप होके दूसरे पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड थे उन्हें खींच के हैवी कर देंगे और उन्हें नीचे बिठा देंगे, राइट. ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग. Now, out of the four options given to you, alum is the correct answer. ये आपने सुना होगा मॉनसून टाइम में कई बार फिटकरी, yes, फिटकरी is actually the हिंदी term for alum. ठीक है, उसका चूरा, उसका पाउडर करके डाला जाता है ताकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो हेवी होके जल्दी नीचे बैठे. ओके, दे फास्टन अप द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. हाइड्रोजन, सल्फर एंड कॉमन सॉल्ट एक्चुअली डोंट डू दिस. सो alum is the correct answer here. Alright, the next question. Which process takes place in a washing machine while drying the clothes? अब देखिए, वॉशिंग मशीन में जब क्लोथ्स ड्राई करते हैं तो क्या होता है, आपका जो टब है वो रोटेट कर रहा है एट अ पर्टिकुलर स्पीड, राइट. अब उसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो रोटेट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है. नाउ एज पर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हाट हैपेंस, द डेंसर पार्टिकल और लेट्स से द बिगर पार्टिकल विल गो अवे, ठीक है, और जो लाइटर पार्टिकल होगा वो बीच बीच में होगा. लेट्स से ये एक ट्यूब है, मैंने इसमें कुछ चीज़ भरी हुई है, उसमें अलग अलग चीज़ें विच हैव डिफरेंट डेंसिटीज. अब इस ट्यूब को अगर मैं गोल गोल घुमा दूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी. तो जो भारी आइटम होगा वो बेटा इस साइड आ जाएगा, बॉटम की साइड पे आ जाएगा, और जो लाइटर मटेरियल होगा वो इधर रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है. This is how actually the clothes are being dried. तो क्या हो रहा है, पानी को बाहर निकाला जा रहा है और क्लोथ्स अंदर अंदर ही रहेंगे. तो बस यहीं से आपको आंसर पता चल चुका है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द करेक्ट आंसर. सी, फिल्ट्रेशन इज नॉट हैपनिंग. ऐसा नहीं कि आपने कपड़े डाल दिए और नीचे फिल्टर होके पानी निकल गया, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है. विनोइंग भी नहीं होता. थ्रेशिंग, विनोइंग आपको याद होगा, ये इन जनरल हमने एग्रीकल्चर में देखा है. विनोइंग में बेसिकली क्या हो रहा होता है, अगेन डेंसिटी का ही कॉन्सेप्ट है, राइट. वेट अगर ज़्यादा है वो नीचे गिरेगा, वेट कम है तो हवा के साथ दूर चला जाएगा. बट नो, इन केस ऑफ द वॉशिंग मशीन टब वी आर एक्चुअली यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स. ओके, डिकैंटेशन वॉज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले कुछ नीचे सेडिमेंट हो गया और फिर उसके बाद आपने पानी निकाल लिया, ना ना, ऐसा नहीं होता. चलिए, we come to the last question of the set now. So which of the following is both physical and chemical changes? देखिए, physical changes कौन से होते हैं जिसमें कि सिर्फ physical property, shape है, size है, color है, बस यही सब change हो रहे होते हैं, और chemical property जिसमें एक नया substance form हो रहा होता है. So we have to take such an option here in which we are able to see both physical and chemical changes happening simultaneously. Great. चलिए, तो first वाला option is the correct answer. Burning of wax candle. What happens when we burn the candle? अच्छा, वैक्स पिघलता है, ठीक है, वापस सॉलिडिफाई हो जाता है, उसके कुछ वेपर्स भी बनते हैं. तो यहाँ क्या हुआ, दिस इज अ स्टेट चेंज, सो दैट्स अ फिजिकल चेंज. एंड बीच में जो विक है,
जो कैंडल में आपने देखा है ना, बीच में से कॉटन की छोटी सी विक होती है, वो जल रही होती है। वो जब जल रही है उसके साथ साथ वैक्स भी होता है थोड़ा, जो कि जलता है। ओके, सो दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑल्सो एनर्जी। ये केमिकल चेंज हो गया, देखा यहाँ केमिकल कॉम्पोजिशन बदल गया, एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो गया, राइट। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई। सो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ वैक्स कैंडल। फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, दिस इज ओनली स्टेट चेंज, मतलब ये फिजिकल है। एक्सपेंशन ऑफ आयरन रिंग, अगेन फिजिकल चेंज है। एंड मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, ये भी सिर्फ फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली ओनली इन द फर्स्ट ऑप्शन इज हैपनिंग हियर। सो दैट्स इट। ये थे हमारे सारे केमिस्ट्री के आंसर्स डिस्कस्ड इन डिटेल। So I wish you all the best for the upcoming rounds of Khoj exam. See you all soon. Hello dear students, I welcome you all on the behalf of IIT Ashram और myself Ambika, I am biology faculty और आज हम डिस्कस करने वाले हैं खोज के सॉल्यूशंस। आपने खोज एग्ज़ाम दिया होगा क्लास 6 के, तो जल्दी से हम क्विक सॉल्यूशंस देखेंगे। आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं अभी चेक कर लेते हैं। Within 15 to 20 minutes with all detailed solutions मैं आपको सब बताते जाऊंगी साथ साथ में कहाँ पर कैसा है। एंड आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। एंड वी ऑफर्स यू अ गुड स्कॉलरशिप सो दैट यू कैन गेट अ चांस टू डू अ गुड स्टडी। शुरू करें, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिसीजेस, है ना बेटा। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन, है ना, ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था। तो हमारे पास हम उसको ब्रॉडली जब क्लासीफाई करते हैं तो किस किस में करते हैं हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं बेटा एनर्जी गिविंग फूड नंबर 1, नंबर 2 कौन सा होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा क्या है बॉडी बिल्डिंग और तीसरा होता है हमारे पास में प्रोटेक्टिव फूड। कौन सा होता है बेटा प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। हमने डिवाइड कर लिया ब्रॉडली। तो एनर्जी गिविंग फूड में हमारे पास क्या आ जाता है बेटा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, तो ये आंसर आपका नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में हमारे पास क्या आता है बेटा प्रोटीन, तो हमारा आंसर ये भी नहीं है। और प्रोटेक्टिव फूड्स में आते हैं हमारे पास विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इजी था ये वाला तो। And second question, which food item gives instant energy because it is directly absorbed into the blood? ठीक है, ऑप्शंस में हमारे पास राइस, ऑयल, ग्लूकोज एंड ब्रेड। देखो बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि हमारे को एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। और हमारे जो डेली डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं। आपकी थाली में आप देखोगे जब आप खाना खा रहे हो तो देन यू विल हैव अ चपाती, यू विल हैव अ राइस, तो क्या होगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे डेली जो हम फंक्शन करते हैं, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है। लेकिन अब यहाँ पूछ क्या रहे हैं कि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। अब खाना खाएंगे, डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज बनेगा उससे, फिर उसका ब्रेक डाउन होगा, फिर क्या होगा आगे एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम यूटिलाइज करते हैं डेली बेसिस पे। पर अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा लग रहा है बहुत गर्मी से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है, वीकनेस फील हो रहा है, या इफ़ यू आर नॉट वेल, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको कि ग्लूकोज लेना है ना, यू शुड टेक अ ग्लूकोज। क्यों लेना है ग्लूकोज? बिकॉज वो हमको क्या देता है इंस्टेंट एनर्जी देता है, डायरेक्टली ब्लड में अब्जॉर्ब होगा, उसके बाद ब्रेक डाउन होने के लिए और कोई स्टेप है नहीं, तो ग्लूकोज से ब्रेक डाउन होगा और इट विल रिलीज द एनर्जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा ग्लूकोज होगा। अदरवाइज आपके यहाँ पर भी हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, है ना, लेकिन हमको क्या चाहिए इंस्टेंट एनर्जी चाहिए जिससे कि हम जल्दी से अच्छा सा फील करने लग जाएं, एनर्जी आ जाए, तो विल टेक ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड हैज स्टंट ग्रोथ एंड स्वेलन बेली
दिस में बी ड्यू टू, क्यों होता है बेटा, आपने जब डिफिशियंसी डिजीजेस पढ़े होंगे ना, उस समय आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स के कम होने की वजह से होती है ना। जैसे एनर्जी लॉस है तो आपको पता है आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, इसी तरीके से प्रोटीन डिफिशियंसी से इस तरीके की जो डिजीजेज होती हैं वो बच्चों के अंदर होती हैं। रीज़न बीइंग कि मसल्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है प्रॉपर बच्चे का, और उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय पे उसकी एक प्रॉपर ग्रोथ होती है, एंड फॉर दैट जो मसल्स फॉर्मेशन है हमको प्रोटीन चाहिए होता है। बट यहाँ पर प्रोटीन डिफिशियंसी होने से बच्चे में इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो भी ग्रोथ रुक रही है या स्वॉलन बेली, मतलब पेट ऐसे आगे की तरफ फूला हुआ है छोटे बच्चों का, आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे बीमार बच्चे होते हैं उनका पेट आगे को निकला हुआ होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ लीफ हेल्प्स कंट्रोल वाटर लॉस। अभी देखो लीफ में ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाटर लॉस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम पहले एक लीफ का डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। जैसे सपोज हमारे पास में एक ये लीफ है ना। अब दिया क्या क्या है इसमें, एक तो लेमिना तो बन गया, फिर मिडरिप। मिडरिप का मतलब है जो सेंटर से रिब, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपने पत्ती में देखा होगा, आप सबने लीव्स देखी होंगी, है ना। वेनेशन भी पढ़ा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, है ना। तो वहां पर आपका इस तरीके का जो बीच में एक मोटी सी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, थोड़ा थिक सा हार्ड सा, उसे हम मिडरिप बोलते हैं। और इस मिडरिप की जो ब्रांचिंग होती है आगे की तरफ को, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेन्स बोलते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा पत्तियों में ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब ये तो 3 स्ट्रक्चर बन गए हमारे पास में, लेमिना भी बन गया हमारा, मिडरिप भी बन गई और वेन्स भी बन गई। एक स्ट्रक्चर बता स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे हमें दिखाई नहीं देता। स्टोमेटा जो है वो लीफ के अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे दोनों पे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, और लोअर सरफेस पे थोड़े ज़्यादा रहते हैं। रीज़न बीइंग कि जितने ज़्यादा हीट पड़ेगा उतना ज़्यादा ये क्या करेंगे, वाटर को इवेपोरेट करेंगे टू मेंटेन द body temperature of the plant, so it may lose more amount of the water। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, नीचे की सरफेस पे ज्यादा होते हैं, एंड दे कंट्रोल द लॉस ऑफ वाटर बाय क्लोजिंग एंड द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कैसे होता है, इस तरीके से एक, अगर हम देखें तो ये ओपन स्टोमेटा है, इसके बगल में ये क्या है, गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर में यहाँ पर स्ट्रक्चर रहता है, ये आपके क्या होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ओपन स्टोमेटा है ना। क्या है बेटा, ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ऐसे ही क्या होता है, क्लोज स्टोमेटा का भी स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है, क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, क्लोज का कैसे होगा, बस वो ऐसे बंद हो जाएगा। सो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये क्या करती है, वाटर लॉस को कंट्रोल करती है। क्या करेगी, वाटर लॉस को। तो क्वेश्चन इज व्हाट, विच पार्ट ऑफ अ लीफ हैज कंट्रोल द वाटर लॉस। सो स्टोमेटा, जब बहुत सारे होते हैं बेटा तो हम स्टोमेटा बोलते हैं, अगर एक को बोलोगे तो आप बोलोगे स्टोमा। क्या बोलोगे, स्टोमा। अगर एक की आप बात कर रहे हो देन यू विल यूज अ टर्म स्टोमा। ठीक है, सो जो स्टोमेटा होते हैं, मतलब स्टोमा इज और स्टोमेटा आर, तो जो स्टोमेटा होते हैं विच कंट्रोल्स द वाटर लॉस बाय द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आंसर इज स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस। देखो बेटा, आपने जो एक चैप्टर पढ़ा होगा आपके बुक में होगा बॉडी मूवमेंट्स करके, अलग अलग तरीके से दिया रहता है। हमारी जो बॉडी है वो मूव करती है बिकॉज जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, और कुछ एक ऐसा भी जॉइंट है जो इमूवेबल जॉइंट है ना, फिक्स जॉइंट जिसे हम बोलते हैं, और ये मूवमेंट की वजह से हम चल पाते हैं, घूम पाते हैं, बैठ पाते हैं, बातें कर पाते हैं, सब कुछ। अगर मूवमेंट नहीं हो किसी भी बोन में तो क्या होगा, हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो स्केलेटल होता है उसके संग मसल्स भी जॉइंट होती है, मूव कराने में हेल्प करती है। लेकिन जितने भी जॉइंट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं
उनका मूव करने का एक तरीका है। वो हर तरीके से ऐसा नहीं है कि हमारा जैसा मन करेगा हम उस जॉइंट को वैसे मूव करवा सकते हैं। नो, देयर इज अ वे और अ पैटर्न बाय विच द बॉडी कैन मूव। ठीक है, सो हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कैसा होता है, जैसे आप दरवाजा खोलते बंद करते हैं, आपने दरवाजा खोला और बंद किया। कुछ डोर्स ऐसे होते हैं जो अंदर और बाहर दोनों तरफ खुलते हैं। यूजुअली डोर्स कैसे होते हैं, वो एक डायरेक्शन में, या तो कमरे या जो रूम है उसके बाहर की तरफ खुलेंगे, या फिर वो रूम में या कमरे में अंदर की तरफ खुलेंगे। ठीक है, सो इस तरीके के जॉइंट जो केवल एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं उनको बोलते हैं बेटा हम हिंज जॉइंट। क्या बोलते हैं, हिंज। हिंजेस भी लगे होते हैं आप डोर पे अगर देखेंगे तो। जैसे हमारा जो नी वाला ये वाला जो जॉइंट है ये हिंज जॉइंट है, हम इसको एक ही डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। मैं अपने हाथ को या आप अपने हाथ को एल्बो से पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो ये वाला जॉइंट क्या होगा, हिंज जॉइंट। सो ये एक डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन ऑल डायरेक्शंस, सारे डायरेक्शन में मूव करें, मतलब 360 में मूव करें, है ना। फिर आपका फिक्स जॉइंट, आपका जो अपर जो है ये वाला जो जॉइंट होता है बेटा ये स्कल के साथ में फिक्स होता है, ये मूव नहीं होता। आप बोलकर देखिए, आपका केवल लोअर जॉ मूव करेगा। आप कुछ खाकर देखिए, आपका केवल लोअर जॉ जो है ये मूव करता है, अपर जॉ कैसा होता है बेटा, फिक्स होता है। तो एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है। पाइवट जॉइंट ये कहाँ पर होता है, ये बेटा आपके यहाँ नेक में होता है ना, इधर की तरफ पीछे। तो ये भी नहीं है। हम गर्दन को घुमा तो सकते हैं बेटा, लेकिन 360 में ऐसे तो घुमा सकते हैं पर सिर को पीछे नहीं ले जा सकते, है ना। जैसे मेरी बाल आगे हो जाए और मेरी जो आंखें हैं, फेस है, वो पीछे की तरफ हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचता क्या है, ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। अगर आपको याद नहीं है, बचता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ पर होता है बेटा, ये हमारे शोल्डर में होता है। इफ आई विल ट्राई टू मूव माई हैंड इन 360 आई कैन डू इट। ठीक है, सो ये आपका क्या होगा, ये सारे डायरेक्शंस में ऐसे मूव करेगा आपका। ये वाले जॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। अब आप स्केलेटन को देख लीजिए। हमारे बॉडी में क्या होता है, एक स्केलेटन होता है। स्केलेटन के ऊपर मसल्स रहते हैं, बॉडी मास रहता है, जिससे हमारी पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो वो क्या क्या करता है, स्केलेटन क्या क्या कर रहा है और क्या उसका फंक्शन नहीं है। तो अगर मुझे मालूम है कि फंक्शन ये नहीं है तो मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। अगर मुझे नहीं मालूम है कि फंक्शन ये नहीं है तो मैं क्या करने वाली हूँ या आप क्या करने वाले हैं, वही हमारा एलिमिनेशन मेथड, जो फंक्शन मालूम है वो देख लेते हैं तो हमारा आंसर अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, ये शेप देता है बॉडी को, बिल्कुल जी शेप देता है ना। हर किसी का स्केलेटन उसके बॉडी को एक शेप देता है। सबका बॉडी शेप अलग अलग होता है। हम सब बहुत यूनिक है। हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक कैरेक्टर है हर तरीके से, तो उसका बॉडी शेप भी अलग होता है। तो बॉडी शेप जो बन रहा है उसका बेस क्या होता है बेटा, स्केलेटन। तो बॉडी को क्या कर रहा है, शेप दे रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन। हाँ, रिब केज जो है हमारे बॉडी में स्केलेटन में रहता है, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। हेल्प्स इन द मूवमेंट, बिल्कुल जी हेल्प करता है। जॉइंट्स रहते हैं, ऑल्दो मसल्स ऑल्सो हेल्प विद दैट, बट अगर जॉइंट्स नहीं होंगे, जैसे ये पूरी बोन है, सपोज ये बोन है, तो ये तो मूव नहीं करेगी ना। लेकिन स्केलेटन में आपके ये जॉइंट्स भी हैं, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर ये पूरा फिक्स रहेगा तो मूवमेंट नहीं हो सकता। तो स्केलेटन क्या करता है, हमारे बॉडी को मूवमेंट में भी हेल्प करता है। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बेटा। रेस्पिरेशन क्या होती है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है बेटा, बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज है या प्लांट है या इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं, तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, स्टार्च में स्टोर होता है, हम उस खाने को खाते हैं। ठीक है, अब वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। तो हम देख लेते हैं कि अगर ग्लूकोज है तो क्या होगा बेटा, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। इसको हम रिएक्ट करा देंगे किससे, ऑक्सीजन के साथ से। रेस्पिरेशन बता रही हूँ, इनहेलेशन किया हमने, है ना। क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो क्या दे देगा हमको, 6CO2 + 6H2 + एनर्जी, है ना। ये वाली रिएक्शन आपकी
जो ब्लड में ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो रहा था ना, वहां पर भी काम करेगी। ब्रेक डाउन हुआ, सीधे एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये रेस्पिरेशन, तो ये क्या है बेटा, बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इसकी जगह पर अगर ब्रीदिंग होता तो समहाउ आप अभी बहुत छोटे हैं तो ठीक है, चल जाता कि ब्रीदिंग में, बट हाँ वहाँ पर क्या होता है कि जो आपके रिब्स के मसल्स होते हैं, रिब्स से जो अटैच रहते हैं, जो उसको जब हम इनहेल करते हैं तो एक्सपेंड करने में और फिर वापस उसको अपनी पोजीशन पे लाने में हेल्प करते हैं, तो वो एक सर्टेन आप उसको कोरिलेट कर सकते थे, बट रेस्पिरेशन इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, सो आंसर इज दिस, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या याद रखना है, नॉट कहीं लिखा हुआ है तो ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन को बहुत गलत कराता है, नॉट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे जो आंसर्स होते हैं, हमें आते हुए भी हम गलत करके आते हैं, तो ये आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन, है ना। ये थोड़ा सा जब आप किसी भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज अगर आपको थ्योरी अच्छे से नहीं पता है, आपने पढ़ा नहीं है चैप्टर, तो इट इज़ बिट डिफिकल्ट। पर यहाँ पर देखते हैं ये उतना डिफिकल्ट है या नहीं है। ठीक है, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये तो अभी पीछे करके आए ना, हर डायरेक्शन में करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसका मतलब ये पहला वाला जो है, सो असर्शन तो क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया, है ना। असर्शन क्या हुआ, ट्रू हुआ। अब रीजन देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है, द बोन इन दिस जॉइंट आर फिक्स्ड एंड डू नॉट मूव एट ऑल। भाई वो तो 360 में कर रहे थे, तो बिल्कुल ही कंट्रास्ट हो गया उसका, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये फॉल्स हो गया। अब देखो जो इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं ना, ये सॉल्व करने आसान होते हैं कि एक क्या है पूरा सही है और दूसरा क्या है पूरा गलत है, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन आते हैं तब थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो ये तो बहुत इजी सा है, तो यहाँ देख लेते हैं क्या है, कहाँ पर है, ए ट्रू आर इज फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सी हो जाएगा कि ए ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग यूजेस। क्या क्या कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम करते, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। आपका एक चैप्टर है गार्बेज इन गार्बेज आउट करके, वहाँ पर हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, मतलब कि वी आर यूजिंग अ अर्थवर्म टू मेक अ कंपोस्ट। कैसा होगा बेटा, नेचुरल होगा, इसमें कोई भी केमिकल एड ऑन नहीं होंगे जो हमारे सॉइल को या हमारे क्रॉप को या हमारे जो उससे बनने वाले फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या ग्रेन्स हैं उनको अफेक्ट कर रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, वर्मी डेड एंड डिकी मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एक इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना लें आप, मतलब फार्मर्स फार्म पे ही बना लेते हैं, या एक टैंक ले लीजिए, उसके अंदर डेड एंड डिकी मटेरियल आपने इकट्ठा किया हुआ है। ठीक, उसमें सैंड भी है, वाटर भी है, काऊ डंग भी है, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, एंड वील यूज द अर्थवर्म इन इट। हमने अर्थवर्म को छोड़ दिया। नाउ व्हाट द अर्थवर्म विल डू, दे विल गो इनसाइड एंड कम आउटसाइड। तो इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, एरिएशन में हेल्प कर रहे हैं। जब अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, सो देयर विल बी अ पैसेज बाय विच एयर कैन गो इनसाइड द सॉइल, अंदर की तरफ जाएगी और रूट्स को प्रॉपर एरिएशन मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो है वो हम अलग से प्रोवाइड करते हैं। पर अब अगर इस तरीके का अगर कंपोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो हम केमिकल्स को अवॉइड करेंगे, बट ऑब्वियस है, जिससे हमारी जो क्रॉप है उसमें केमिकल ना जाके नेचुरल तरीके से हम उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करें। नाउ वन क्वेश्चन also is that why nitrogen is important, because nitrogen we use for the protein synthesis। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, नाइट्रोजन को। क्यों, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस करानी है। ठीक है बेटा, तो आंसर इज द अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, स्टडी द डायग्राम एज शोन इन दिस फिगर। ये कुछ नंबर कहीं से आ गए, सो वी कैन इरेज इट। ठीक है जी, चलिए, सो दिस इज वॉट, सबसे पहले आप देख लीजिए आपको कैसे स्टडी करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा नॉन लिविंग थिंग्स। क्या लिखा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, नॉन लिविंग मतलब
दे आर नॉट लिविंग। अब इसको बाइफरकेट किया कि क्या क्या नॉन लिविंग, मतलब कैसा नॉन लिविंग, वो शुरू से ही नॉन लिविंग था या पहले लिविंग था और बाद में वो नॉन लिविंग हो गया। ठीक है, तो एक है वंस अलाइव, कभी तो जिंदा था, है ना, कभी तो जिंदा था, और एक है नेवर अलाइव, जो कभी भी लिविंग नहीं था। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा इरेजर, इरेजर कभी लिविंग था। आपको पता है, आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा या आप NSO की तैयारी कर रहे होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि जो इरेजर है वो प्लांट के लेटेक्स से बनता है। ठीक है, किससे बनेगा? प्लांट के लेटेक्स से। सो लेटेक्स इज लिविंग, तो वंस लिविंग, कभी लिविंग था। वुड किससे बन रही है? प्लांट से बन रही है, प्लांट के स्टेम से बन रही है, तो कभी लिविंग था। ठीक है, जब हमने उसका, जब तक प्लांट है तब तक वुड जो है, वो स्टेम जो है वो ग्रो कर रहा है, मतलब लिविंग है। जैसे ही हमने काट के टेबल्स बना लिए, सोफा बना लिया, बेड बना लिया, फर्नीचर बना लिया, वो कैसा हो गया? नॉन लिविंग। ऐसा नहीं हमने एक टेबल बनाई वो कल 2 हो गई, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्या होगा? वो तब लिविंग था जब वो प्लांट में था, लेकिन जब हमने प्लांट से काट लिया, नाउ इट्स बिकम अ नॉन लिविंग। सो वंस अलाइव, हाँ, जब तक प्लांट के साथ में था तब तक लिविंग था, जैसे ही प्लांट से अलग हुआ से नॉन लिविंग। ठीक है, नाउ दिस इज नेवर अलाइव, कभी भी नहीं था, कभी भी लिविंग था ही नहीं। तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है स्टील। आपको देखना है कि वाई क्या होगा जो कभी भी लिविंग नहीं होगा। देख लेते हैं, जैसे कॉटन शर्ट्स, कॉटन जब प्लांट में था, है ना, कॉटन का प्लांट होता है तब लिविंग था, तो आंसर ये तो नहीं होगा। ठीक है, ड्राइड फ्लावर, आपने फूलों को लिया और बुक के अंदर रख दिया और सुखा लिया और फिर कुछ कहीं पे पेंटिंग में या कार्ड में या कहीं बनाने में यूज़ किया, लेकिन जब वो प्लांट में थे तब कैसे थे बेटा? लिविंग थे, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज बुक्स, आपके जो नोटबुक्स बनते हैं वो भी किससे बनते हैं? प्लांट पल्प से बनते हैं, तो जब प्लांट था तब कैसे थे? लिविंग थे, तो ये भी आंसर नहीं है। ग्लास बॉटल्स, सो वाई क्या होगा आपका? ग्लास बॉटल्स होगा। ग्लास बॉटल्स कभी भी लिविंग नहीं थे। ठीक है, कितने बच्चों का सही हुआ ये वाला आंसर? चलिए, एंड दिस इज दी लास्ट क्वेश्चन। आप चेक कीजिएगा आपके, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, आपके जो 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं वो कितने सही हुए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था कि अभी हम पढ़ रहे थे कि रेस्पिरेशन जो है बायोकेमिकल प्रोसेस है, पर रेस्पिरेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस, बिकॉज वी रिक्वायर द गैसेस फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड वी रिलीजेस द CO2 विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, तो 2 गैस होंगी हमारे पास में बेटा। कौन कौन सी 2 गैस होंगी? एक होगी हमारे पास में O2 और एक होगी हमारे पास में CO2, मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 गैसेस हैं। अब देखते हैं कौन कौन क्या क्या स्टेटमेंट दे रहा है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो इनहेल कर रहे हैं, व्हाट वी रिक्वायर्ड दी ऑक्सीजन, है ना, हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सो एनवायरनमेंट में जो अगर हम परसेंटेज देखें तो 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% आपकी अदर गैसेस होते हैं, जिसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो अब हम जब इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन, बट ऑब्वियस है हमको ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? जिससे हमने जो खाना खाया है उसका ऑक्सीडेशन हो पाए और हमको एनर्जी मिले। ठीक है, तो हम इनहेल क्या करेंगे? O2, एक्सहेल क्या करेंगे? CO2। बट प्लांट्स में जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम इनहेल क्या, प्लांट इनहेल क्या करता है, क्या लेता है? CO2 लेता है। क्या लेता है प्लांट? CO2। और रिलीज क्या करता है? O2 करता है। ठीक है, दिस इज द फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो CO2 लेगा और O2 छोड़ेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, लेकिन जब रेस्पिरेशन हो रहा है तब प्लांट O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा। मतलब रेस्पिरेशन में एनिमल्स भी O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, और प्लांट्स भी O2 ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अनन्या और सौम्या, संचित और रंचित, 4 बच्चे हमारे पास में, और हमें ये देखना है कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया। सौम्या ने बोला एनिमल टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेटा यही गलत हो जाता है ना, क्योंकि एनिमल्स क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, तो ये तो यही गलत हो। ठीक है,
अब संचित, एनिमल्स टेक्स ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको क्या बताया, हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो एक नाम तो हमारा यहां से आ गया कि संचित सही बोल रहा है। संचित क्या कर रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है, तो ये सही हुआ। अब सौम्या ने बताया प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या हो गया बेटा, ये फोटोसिंथेसिस हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, ये फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, फोटोसिंथेसिस होगा बेटा। ये फोटोसिंथेसिस क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 लेते हैं और O2 एज अ बाई प्रोडक्ट छोड़ते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब देख लेते हैं रंचित क्या बोल रहा है। रंचित बोल रहा है प्लांट टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया कि जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं एज एनिमल। तो ये सही बोल रहा है, मतलब हमारे पास रंचित और संचित ये दो का जो आंसर है ये सही है बेटा। अब देखते हैं हमारे पास अनन्या एंड रंचित नहीं, संचित एंड सौम्या नहीं, संचित एंड रंचित यस, रंचित ओनली नहीं, ठीक है। सो आंसर इज संचित एंड रंचित। तो अगर आप कोई भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके आंसर्स डेफिनेटली कर पाएंगे। एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व ओनली बाय द रीडिंग, डेप्थ रीडिंग ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए, रेफरेंस बुक्स को पढ़िए और जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़िए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, होपफुली टू स्कोर वेल, ठीक है। मिलते हैं अगले खोज के सोल्यूशन में, तब तक के लिए बाय बाय।